वैसा सेग्रीगेशन ला पाना जो 90s और 80s में था, कि भाई लोग एक दूसरे को ही, जो क्लास वॉरफेयर, जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा में एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं पिलर रहता है, वो शायद हम्म। खड़ा कर पाना आज के भारत में मुश्किल होगा, क्योंकि आज के भारत की जो सच्चाई है वो बहुत मिली जुली है। अब ये उतनी हाईली कंट्रास्टेड नहीं रही। तो मैं यही चीज। मंडल कमंडल हाँ जैसा तो कुछ होता नहीं देख रहा। जी, बताइए। यही बात मैं मनु जानना चाह रहा था बिल्कुल। जब योगेश ने आपसे सवाल लिया तो मेरे मन में व्हाट आई वाज आल्सो लुकिंग एट वेदर द इंडियन वोटर्स, द इंडियन इलेक्टोरेट नाउ कैन मेक दैट स्टार्क डिफरेंस एज अर्ली एज 2004। अजित जी, मैं यहाँ आपसे आपका रुख करना चाहूंगा। 2004 में जब इंडिया शाइनिंग के बावजूद बीजेपी ने चुनाव हारा और कांग्रेस आई और 10 साल वो रही, और फिर उसके बाद जिस तरह से उसे हटाया गया, जैसे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन, तब तक मैं कहूंगा फिर भी एक नजर आता था। अभी जो सेंटिमेंट हम पिक कर पा रहे हैं, जैसा अजित जी आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में भी कहा कि कुछ गलतियां इंडिया अलायंस से भी हुई या कुछ ओवर कॉन्फिडेंस एक तरीके से नजर आया बीजेपी की भी तरफ से। हमें जो ग्राउंड पर जो रियलिटी देखने को मिलती है वो ऐसा होता है कि दो हिस्से हमें नजर आते हैं। पहला हिस्सा ये होता है जो बोलता है कि भाई कुछ भी हो, बीजेपी ही सबसे बढ़िया है, उन्होंने ही सब कुछ काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, और कई अलग अलग चीजें हैं। दूसरी तरफ आपने जैसा बताया अमित जी कि लोकल इश्यूज जैसे कास्ट भी एक मुद्दा बनना है, वो है, हमने देखा है। लेकिन वहां भी ज्यादातर लोगों का कहना था कि चलिए महंगाई है तो क्या हुआ, हम इसको ऐसे ही चला लेंगे, चलिए काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट हम देंगे। ये भी एक हमें सेंटिमेंट नजर आता है। आप किस तरह से इसको असेस करेंगे? जो मनु ने कहा कि पहले बहुत ही क्लियर वोटिंग होती थी, अब जो है वो कहीं ना कहीं यहां चलता है, एटीट्यूड आ गया है, क्या ऐसा आप भी महसूस करते हैं? एंड इफ यू डू, देन हाउ डू यू सी इट फॉर इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी? See, let's look at the markers on the ground. Let's look at Modi ji. Look Yes. at Modi ji's campaign before the first phase, and let's see Modi ji's campaign after the first phase. Before the first phase, Modi ji was campaigning brilliantly on the strengths of BJP, his achievements of the last 5 years, in fact, the achievements of the last 10 years, right? Labhyarthi program and the various other programs that the BJP government has brought about. The moment the BJP saw turnout reaching 10% minus, the entire BJP campaign changed. And symbolically, Modi ji began the first negative campaign. He started Congress ka manifesto, Muslim League ka manifesto hai. Recently, we saw Modi ji. I was totally foxed when he started attacking and saying, Adani, Ambani, kya टेम्पो भर के पैसा कांग्रेस के जो भी शहजादा हाँ, को so देते there हैं, has been तो what a I'm shift in his stand. Yes. remarkable shift. Why? Remarkable shift. Obviously, Yes. and all of us know, Manuji also knows, and all of us know that Modi ji is the number one psephologist of this country, right? He knows elections better than anyone. The moment he saw the turnout going down and the background of 2019, when the turnout was massive on the issue of Balakot, he realized something is going wrong. And therefore he changed his campaign. Now I would go back to So Modi all ji, favorite and if I Pakistan was comes into picture then. absolutely, absolutely. Pakistan comes into picture, attack on the minorities come into picture, the entire campaign changes, right? And what I'm saying, if Modi ji were to, I mean, he's not going to call me, but if I was advising him, I would tell him that Prime Minister Narendra Modi, the more you attack Rahul Gandhi directly, the more Rahul Gandhi develops sympathy factor, like Arvind Kejriwal. The moment you put Arvind Kejriwal inside the jail, suddenly in Delhi, Arvind Kejriwal develops sympathy factor, which he did not in the past. He was losing his shield. Okay. Rahul Gandhi was ठीक considered an unimportant person. Today, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, everyone is watching them. Why? Because the target of Modi ji is precisely Rahul Gandhi. So what I'm saying is negative campaign it has a heavy risk. What it does, people forget the achievements of the government as they go nearer election. They start looking at what the prime minister is saying, and they start developing sympathy for the other side. This used to happen in Bihar. ठीक Those days I was जी जी editor of Times of India.
the more the Congress used to attack Lalu Prasad, the more he was becoming popular. So I'm saying targeting of personally. Yeah, go ahead. Right. Absolutely, absolutely, sir. Individually, if you target anyone, I mean, we have seen it in the past also. Rahul Gandhi losing his Lok Sabha membership over the Modi remark. At the end of the day, it was what? It was, again, if you go individualistic in your targeting. If Sonia Gandhi is being targeted by the BJP, obviously there is a repercussion and the blowback is on the BJP. So we have seen that in the past, and you are right as well. Manu, final question from you before we say good day to both of you. If we have to make a guess as of now, or I will say an informed guess as of now, आप किस तरफ हवा का रुख देख रहे हैं, पहली बात ये, और दूसरा, जो 3 और मतदान के चरण बचे हुए हैं वो उन जगहों पर हैं, खास करके 5th फेज जो कि एक कंप्लीट बैटल ग्राउंड, आप रायबरेली, अमेठी, लखनऊ एंड अयोध्या, फैजाबाद, इन सब इलाकों में हम देख रहे हैं जो कि स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का. कैसे आप देखते हैं यहां से, इफ देयर इज अ मैसेजिंग फॉर द रूलिंग बीजेपी, व्हाट वुड इट बी फ्रॉम योर साइड? Well, I mean, messaging over successive, I would say, years or perhaps decades of electioneering is that carry a positive message. एक positive message लेके आप लोगों के पास जाइए. अक्सर उसका ज़्यादा फायदा होता है बजाय कि नेगेटिव के, कि भाई अगर हम नहीं आए तो वो ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे. लोग समझते हैं कि जो जितने भी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, और उसी के हिसाब से वोट करते हैं. लेकिन उसी में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो एक ये थॉट प्रोसेस है, और ये मैंने बहुत सुना है, पिछले जैसे ही ओपिनियन पोल देखिए बंद हो जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ पोलिंग के साथ, और फर्स्ट डे ऑफ पोलिंग के बाद जो होता है, आप अक्सर एक कैंपेन सुनना शुरू करते हैं कि भाई हमको फलाने उन्होंने बोला, खेला हो गया, इधर से सुना, खेला हो गया, ये हो गया, वो हो गया. एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग आफ्टर द पोलिंग्स. Opinion polls have stopped. Just think, this sort of World Economic Forum has defined misinformation as one of the key risks for most major economies, like amongst the top 3. So I would suggest that instead of taking guess on, what could be basically anecdotal stuff, it would be better to go back to the credible and the what I call attributed polls that happened in the time when it was okay to do so, and base your analysis out of those कि यहाँ से कहाँ जा सकता है, rather than imagining कि हो गया, खेला हो गया and all that. बिल्कुल बिल्कुल. Point taken. Much appreciated. एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन. Yes, please, Shahzad. Please, you go ahead, Mr. Ajit. I just wanted to say that perhaps, and I'm not a master of elections, although I've studied elections during my doctorate in America. But one of the shifts taking place in the BJP, and maybe that is what is causing this, what I would call a change in campaign strategy, is that the BJP had already reached a plateau in the so-called Hindi heartland states, Gujarat, right? So the BJP can't do better than that. Last time they had matched Gujarat, Rajasthan, almost Madhya Pradesh, UP में काफी seats, 2014 में 72 seats, इस बार भी शायद अच्छा करे. So what I'm saying is, what is happening, perhaps a big change, is that the BJP is making fresh incursions in Andhra, in Odisha, in West Bengal, maybe Tamil Nadu and Kerala. This is an interesting shift. And if the BJP loses some seats in the so-called Hindi heartland where it plateaued because of whatever issue, it might make up by its incursions in the south and east. That is one of my speculations. बिल्कुल उनकी स्ट्रेटेजी जाहिर तौर पर वही है, इसीलिए साउथ में, तमिलनाडु में इतनी विजिट्स जो है पीएम ने खुद की हैं. लास्ट क्वेश्चन है दोनों ही मेहमानों से. अरविंद केजरीवाल, वो जो मर्जी हैं, लेकिन उनको अब नजरअंदाज नहीं कर सकते. हालांकि बाहर निकले 2 दिन हुए हैं,
3 फेज अभी भी हैं। ताबड़तोड़, लेकिन उन्होंने दिल्ली उनके पास है, पंजाब उनके पास है, हरियाणा बगल में लगा है जहां पर चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों के अलावा और बाकी जो बिहार उत्तर प्रदेश के चुनाव होने, कोई फैक्टर आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल इंपैक्ट करेगा ये फैक्टर? मनु जी पहले बोले तो। जी मनु जी शुरुआत करते हैं उनसे। धन्यवाद। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भारतीय राजनीति में अगर आप कहें तो पहली बार यह है कि एक मास बेस लीडर खुद ब खुद निकला है अपनी पार्टी खड़ा करके, खासकर उत्तर भारत। और कि भारतीय राजनीति में लोगों को संघर्ष बहुत पसंद है। अभी तो खैर चलिए, हम सब आई थिंक अब उस जनरेशन के हैं कि एक जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर फोटोग्राफ है, वो बड़ी में ऐसे हुए थे, और वो फोटो जो थी वो एक आइकॉनिक तस्वीर साबित हुई। और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो राजनीति में काफी देर तक जमे रहे। तो भारत में संघर्ष शायद अरविंद केजरीवाल जी को उनका संघर्षपूर्ण एक समय या एक रोल मिल गया, और अब खैर उसका वो लाभ उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है, लाभ कहाँ उठाएंगे? लाभ तो देखिए वहीं उठा पाएंगे जहां उनका काडर होगा, जहां उनकी प्रेजेंस होगी। तो दो ही उनके पास जगहें हैं, एक दिल्ली और एक पंजाब। पंजाब में क्योंकि अभी पोल्स थोड़ा ज्यादा दूर हैं तो वो ज्यादा कैंपेन कर पाएंगे। दिल्ली में जो है थोड़ा एक अंतर विरोध है कांग्रेस के साथ अलायंस का, और उसके तहत शायद मतलब उन वो जो कुछ पॉजिटिव दें तो शायद वो इक्वलाइज हो जाए दूसरी तरफ से। लेकिन पंजाब में तो मुझे लग रहा है उनको काफी समय मिलेगा और वो इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। जी अजीत जी। अजीत, देखिए, इंग्लिश में कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है अरविंद केजरीवाल का? उनकी राजनीति जब शुरू हुई तो टोटली एंटी कांग्रेस, शीला दीक्षित को खत्म किए, राइट? अच्छा, एक तरह से वो सेंट्रिस्ट पॉलिटिशियन है। स्टार्टअप पार्टी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया में लाए, है ना? दिल्ली में 3 चुनाव धड़ाधड़ जीत लिए, पंजाब में जीते, गुजरात में असेंबली चुनाव में 16% वोट उनको मिला पिछले असेंबली चुनाव में। हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हरियाणा लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से लुढ़क रहा है, तो वहां भी वो एंट्री कर सकते हैं। पर मेरा ये कहना था, पैराडॉक्स क्या है? उनका राजनीति था एंटी कांग्रेस, वो कांग्रेस को हर्ट कर रहे थे, बार बार जहां कांग्रेस जाती थी उसको रिप्लेस कर रहे थे। बीजेपी ने जो टारगेट किया अरविंद केजरीवाल को, तो उलट गया पूरा पिक्चर। उसके कारण क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल आज सबसे बड़े स्पोक्समैन एंटी मोदी एंटी बीजेपी बन गए, जाके सट गए हैं राहुल गांधी के साथ। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की राजनीति होती है, आपको लगता है हम तो 400 पार हैं, सारे राइवल्स को टारगेट करना शुरू कीजिए। उससे हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल जो मेरे अनुसार चूहा थे, उनको हाथी के तरह मारने के लिए आप ईडी को भेज दिए 9 बार और जेल में डाल दिए। भाई, अरविंद केजरीवाल बहुत छोटे पॉलिटिशियन थे, आज लार्जर देन लाइफ हो गए हैं। सडनली जो है लोग उनको सवाल करता है कि आप क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो मैंने कहा ये जो टारगेटिंग किया बीजेपी अरविंद केजरीवाल को या झारखंड में किसी मुख्यमंत्री को, दैट आई थिंक इज अनफेयर। और ये जो है बीजेपी पर अंग्रेजी में कहेंगे बूमरैंग कर गया है। आज अरविंद केजरीवाल यदि कांग्रेस के साथ दिल्ली में अलायंस किए तो हो सकता है कि 1-2 सीट जीत ले अलायंस। पिछला आप रिकॉर्ड देखिए, 7 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार 6 सिटिंग एमपीज को रिप्लेस करना पड़ा है, बदल दिया गया है ना? बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये पैराडॉक्स होता है राजनीति में, टारगेट मत कीजिए पर्सनली, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो। ये मेरे अनुसार ये इलेक्शन 2 महीना पहले मोदी जी जीत चुके थे, बट ये जो सेल्फ गोल्स हो रहे हैं बीजेपी के तरफ से, उससे जो है इंडिया गठबंधन को हवा मिल रहा है। इंडिया गठबंधन भी सेल्फ गोल्स की थी पहले, बट राहुल गांधी का जब यात्रा फाइनली एंड किया मुंबई में, तब से देखिए ये इलेक्शन जो है पलटने लगा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी जीत के नहीं आएंगे, पर ये मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्वीप इलेक्शन जो था, जो कि 2019 के तरह एक सुनामी बन सकता था, वो नहीं बना।
और फिर नॉर्मल इलेक्शन हो गया ठीक। और फिर कास्ट सर्वे, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा एजेंडा बन गया। जी Chaliye, gentlemen, thank you so much for your worthy insights, and we definitely look forward to speak to you in the subsequent stages of the elections, and also the 1st of June when the 7th phase gets underway, and the 4th of June, the all-important day. Manu Sharma, psephologist, and Ajit Kumar Jha, senior journalist and CEO and editorial director of Blitz India. Thank you so much for sharing your thoughts here. Subscribe to One India channel and never miss an update.